Today, the topic that I will be discussing is ATLS, the type of hemorrhage, trauma-induced coagulopathy, damage control resuscitation, massive transfusion protocols or resuscitation, and damage control surgery. Well, I'm Dr. Hira, resident anesthesia, CMH. Starting with the ATLS, that is the trauma is the leading cause of morbidity and mortality among the people of all age groups and is the leading cause of death both in the young and the elderly. So the basic focus of ATLS is the management of the patient with major injuries. Patients should be managed in the golden hour so that better outcomes could be achieved. It is considered in four phases: the primary survey, resuscitation, secondary survey, and the definitive care. The primary survey and the resuscitation, they go side by side. Uske baad, then we go to the secondary survey and the definitive care. In the primary survey and the resuscitation, the primary survey includes airway, breathing, circulation, visibility, and the exposure. In the airway should be controlled considering the patient has a cervical spine injury until or unless proven otherwise. The breathing and the ventilation, circulation, and the hemorrhage control. Disability, which includes the assessment of the neurological function and the exposure with the environmental conditions. For the airway management, the patient basically, whenever they basically come in the trauma center, and it is important to manage the airway first so that the oxygenation or hypoxia could be stopped and oxygenation of the body should be achieved. It is the basic need for life support intervention. It is presumed that the presence of cervical surgery is there until unless proved otherwise, and there should always be a potential for failed endotracheal tube intubation. Cervical stabilization is the first step, so that any injury to the cervical spine should not be proceeded to a full cervical spine injury. The cervical spine injury is presumed in patients that have neck pain or if there is any suggestion of neurological injury, there is loss of consciousness or signs of head injury or intoxication. Patients with a cervical injury should have a Philadelphia collar, that is a hard collar for the neck stabilization. The airway should be open using a chin lift or the jaw thrust. Hard collar, basically they have an impact in that with the hard collar on this difficulty to do the laryngoscopy. So alternative methods of like video laryngoscope or fiber optic bronchoscope should be available. Improving oxygenation and reducing hypercarbia by effective life support in trauma patient improves the level of consciousness in some cases, and in other cases, it reduces the risk of hypoxia. All patients should be considered full stomach, therefore, there is an increased risk of pulmonary aspiration. First method that should be done is the chin lift and the jaw thrust. Apart from that, the tracheal intubation is considered. As we already discussed, the cervical spine injury is in mind and Philadelphia collar is applied to the patient. So there is a difficulty in doing the laryngoscopy. So the front of the collar should be removed. Head and neck must be maintained in the neutral position by an assisting who would be standing on the torso or kneeling at the head of the bed. The patient head should be at the level of the air to allow it for opening for a laryngoscopy. Apart from that, supraglottic devices should be available. The one which we are discussing here is the King Suprapharyngeal device. It has uh, it has two large cups. One is the glottis cup, and the other one is at the level of the esophagus. The glottic opening lies between the large cup, positioning at the base of the tongue, and the smaller balloon is positioned in the paroxysmal esophagus. The airway is not secure, but rather isolated from the oropharynx and to reduce the risk of pulmonary aspiration. Uh, as you can see in this picture, the epiglottis end of the cuff is very large, and it engorges the tongue by applying pressure. At the end, there is a risk of um, uh,
uh, difficulty in when we will remove it, there would be a difficulty as for a patient to maintain the airway, and the tracheostomy is warrant. The third step that we could do is cricothyroidomy, and in the end, a tracheostomy for if the patient has to be resuscitated for a very long time. The next step in the ATLS is breathing. Breathing is done. Breathing assessment is basically done by look, listen, and feel approach. During During the process of looking for a patient for cyanosis, use of accessory muscles should be checked. The flail chest and penetrating and sucking chest injuries should be seen. For a listen part, we should listen for the absence or the presence or the diminished breath sounds. We should feel for subcutaneous emphysema, tracheal shift, or a broken rib. The aim is to identify and manage 6 life-threatening thoracic conditions such as airway obstruction, tension pneumothorax, massive pneumothorax, open pneumothorax, or flail chest with pulmonary contusion and cardiac tamponade. And as we go on, we should look for any kind of blunt injury or trauma penetrating injury in the patient. When the patient is mechanically ventilated, we should be very vigilant about the peak inspiratory pressures and the tidal volumes should be monitored. Any abrupt decrease in the any of the decrease or vascular collapse must during the mechanical ventilation. We must assume a pneumothorax. The mechanical ventilation should be stopped. Bilateral thoracotomies should be performed by immediate decompression with a 14-gauge cannula inserted in the second intercostal space in the mid-clavicular line. It should be followed by a thoracostomy tube in the mid-axillary line. Next comes the circulation. The pulse and BP should be monitored. Wide bore IV lines should be maintained. FAST scan is done to evaluate the chest and abdomen in the 4 very important spaces: the pre-hepatic or hepatorenal space, perisplenic space, pelvis, and the pericardium. We basically look for any hemorrhages or blood accumulation at these points. For the cases of limb trauma and increased bleeding through the limbs, the tourniquet should be applied. Most of the clinicians, they are reluctant to apply any kind of tourniquet with the risk of loss of limb due to ischemia, but the loss of bleeding, loss of life due to bleeding overweighs the loss of limb due to complications with the tourniquet use. So the tourniquet should be applied or the pressure should be applied at the place where it's bleeding. The disability and neurological functions, they are basically checked by 2 mechanisms, the AVPU and the Glasgow Coma Scale. In APVU, the patient is looked for his alertness, the verbal response, the painful response, and the unresponsiveness. This is a very immediate thing we can do. After that, we can also look for the Glasgow Coma Scale. The Glasgow Coma Scale, everyone would be knowing it. The best response is 15. The comatose is 8 or less, and totally unresponsive patient is 3. The disability and the neurological functions, we see the loss of consciousness, the pupillary sinus reaction, any lateralizing signs, potential spinal cord injury, hypoglycemia and hypoperfusion should be in the mind, and also the intoxication. Exposure comes the last and the final thing in the ATLS primary survey. The patient should be undressed to allow examination of the entire body surface for injuries. The inline mobilization should be used if the neck or the spinal cord injury is suspected. There is high risk of hypothermia because the patient is fully exposed. So the room where the patient is being exposed should be maintained according to the body temperature that is greater than 38 degrees. All IV fluids and blood products should be warm. The patient warmers be utilized in the form of blankets or heating devices. Patient should be moved doing a log roll maneuver, and the spine should be palpated from the back. And in the end, digital rectal examination is performed. During the primary survey, the resuscitation is also being done. After that, the secondary survey comes. In the secondary survey, the head and toe is evaluated after the initial resuscitation process that we have done. It includes the complete history and physical examination and the reassessment of all the vital signs.
The next thing we will be discussing is the resuscitation hemorrhage. Hemorrhage is the loss of blood from the damaged blood vessels. The American College of Surgeons identifies four classes of hemorrhage, class 1 to class 4. Class 1 hemorrhage is the volume of blood that is lost without hemodynamic consequences. It is basically less than 15% of the total blood volume. There is no change of heart rate or blood pressure. For class 2 hemorrhage, the volume of blood lost is represented from 15 to 13%. There is rise in diastolic blood pressure and heart rate is increased. IV fluid replacement is required in these conditions. Class 3 is 30 to 40% of the total blood loss. There is reduced blood pressure and raised heart rate in this specific class because the pulsatory mechanism of vasoconstrictions are not sufficient for maintaining the tissue perfusion. So metabolic acidosis is one of the signs that comes and blood transfusion is necessary and there is an immediate need for a damage control intervention. In class 4 hemorrhage, this is the life-threatening. More than 40% of the total blood volume is lost. Patient is unresponsive and hypertensive and there is a need for damage control resuscitation and trauma-induced coagulopathy should be in mind. Hemorrhage can be also classified by the nature of the blood vessel involved, the timing of the hemorrhage, the duration of the hemorrhage, and the type of hemorrhage. Nature of the blood vessels is arterial, venous, or capillary. Arterial blood is bright red, spurting, and it's hard to control. The venous blood is dark red, it has a steady flow and easy to control. The capillary blood is bright red, it's oozing and easy to control. According to the timing of the hemorrhage, the hemorrhage could be primary, reactionary, or the secondary. Primary hemorrhage occurs at the time of injury and is a result of direct injury to the vessels. Reactionary bleeding occurs within 24 hours. This is because of the slipping of the clips or dislodgement of the clots. The secondary hemorrhage occurs after 7 to 14 days of the surgery and is due to the infection or the pressure necrosis. According to the duration of the hemorrhage, it could be acute or chronic. And the nature or type of hemorrhage could be internal or external, that's concealed or revealed. The internal or concealed is within the cavities and may be concealed as ruptured spleen or liver. And the external hemorrhage is due to the injury of soft tissues and it's basically bleeding from the, it's one of the examples of bleeding from the lungs. The next thing we'll be discussing is trauma-induced coagulopathy. It is an independent risk factor for death and it's basically due to the global tissue hypoperfusion. It has an intrinsic dysregulation of the blood coagulation in the setting of the trauma. The factors released by the tissue and endothelium in response to the injury and hypoxia cause coagulopathy by several mechanisms. One is anticoagulation, the second is platelet dysfunction, and the third is hyperfibrinolysis. The thrombothrombomodulin protein system is dysfunction. Endothelium releases thrombomodulin and activates the protein C. It binds to thrombin. The thrombin cannot cleave fibrinogen to fibrin, and it also activates protein C that has an effect on both factors 5 and 8. Tissue plasminogen activative factor is released from the endothelium during hypoperfusion. It leaves the plasminogen to initiate fibrinolysis. Activated protein C consumes a plasminogen activator inhibitor 1, which presents in excess and a reduce in PAI leads to increase in the TPA activity and hyperfibrinolysis. In this situation, tranexamic acid therapy has also been used and has a very good outcome. For that therapy, a loading dose of 1 gram over 10 minutes is given to the patient and is followed by an infusion of 1 gram over 8 hours. But this tranexamic acid therapy should be initiated within 3 hours following the major trauma. In damage controlled resuscitation, there is a balanced administration of red blood cells, the fresh frozen plasma, and the platelets in 1:1:1. It helps preventing or correcting the DIC. Trauma centers have O negative blood group available at all times. The blood transfusion processes start from O negative as soon as the patient is received and the type of hemorrhage is identified.
Then the specific cross-match is done, type specification is done, and then cross-match blood is available for the patients. The amount of uncross-matched blood, if it's beyond 8 units, resuscitation should persist with O negative and should not be switched to patient blood type for transfusion, as there are increased reactions for that matter. The more recent approach to guide specific blood products is TEG and ROTEM. TEG is thromboelastography, and ROTEM is rotational elastometry. These two processes have been very useful in addressing the blood components to the specific deficiencies rather than relying on 1:1:1 transfusion. Both TEG and ROTEM, they demonstrate the rate of clot formation and clot stability. They reflect the interactions between the coagulation cascades, platelets, and fibrinolytic systems. As the end result is that more of the reduced blood products are used, and they're reduced it allows use of more specific blood products and reduced use of blood products, and it helps in the recognition of fibrinolysis. Because of this, trolley and TECO, that are both the side effects of the transfusions, are reduced. In trolley, that is transfusion-related acute lung injury, is basically due to HLA antibodies in the donor plasma. The blood banks are now being very vigilant, and they only accept blood from males or those females who have been tested negative for HLA antigens. The risk of TECO, that is transfusion-associated circulatory overload, is basically the responsibility of the anesthetic or the person who is giving the blood. Because this can there should be a very good communication between the surgeon and the anesthetist, for that matter. As soon as the blood is as soon as the surgeon controls the blood bleeding, the blood should be overloading of blood should be stopped, so that the heart is not overloaded with fluids. Invasive transfusion protocols refers to the rapid administration of large amount of blood products, that is at least 6 units of flat blood cells in fixed ratios, 1:1:1, for the management of hemorrhagic shock. It improves survival from the trauma and reduces the total blood products utilization in the first 24 hours. It also reduces the acute infections and complications and decreases the post-resuscitation organ dysfunction. Therefore, crystalloid-based resuscitation should not be done, and blood-based resuscitation is recommended. Anesthesia concerns that we come across is they start from the preparation. Before the patient comes to the OT should be warmed enough. The IV fluid warmers should be present in the OT. Rapid infusion devices should be available, as well as suction equipment, because they're high risk of because the patient is considered to be full stomach when he arrives at the OT. Alternative air devices should be present, and the white variable lines. Basically, they are inserted in the trauma center, but if that's not possible, a subclavian catheter or interosseous devices are used, and a CVC in the jugular vein can also be utilized in the OT and under the ultrasound guidance. The A line is not mandatory, but if it's available, it's a very good thing to have. For induction, etomidate or ketamine is given. The ketamine is given in 10 mg IV boluses, because the trauma patients, they tolerate less medicines for medication as well as for induction. If we go for propofol, the blood pressure reduces very drastically, and then it becomes impossible to manage that. Scopolamine is given in the patients who are hemodynamically unstable but conscious, and a rapid sequence of induction should be performed as the patients are considered full stomach. If the patient is conscious, the patient should be advised or should be counseled about the operation, that maybe there would be some chances that the patient could be aware of the intraoperative
the intraoperative awareness is one of the chances in the patients with who are having emergency surgeries. For maintenance, trauma patients, as I told you earlier, they tolerate less medications for maintenance as well. The blood products should be used for resuscitations. As a large amount of blood is given to the patients, the ionized calciums are utilized in the blood and they should be replaced. Vasopressors should not be given, as there have been studies that if we give the vasopressor for raising the blood pressure, during hemorrhage, it disrupts the fresh clots, resulting in more bleeding among the patients. For damage control surgery, this is done to stop the hemorrhage. It is an emergency surgery, and definitely repair the complex injuries is not part of the damage control surgery. It basically helps to stabilize the patients for the clinician to subsequently reverse the physiological insults prior to completing a definitive repair. That damage control surgery can be divided into the 3 steps: the initial nephrotomy, the intensive care unit, resuscitation, and the definitive reconstruction. Controlling hemorrhage followed by contamination control, abdominal packing, and placement of a temporary closure device is the first step that we do in initial nephrotomy. Patient is given a midline incision with quadrant by quadrant examination by the surgeons. The solid organ injury like spleen and kidney should be dealt by resection of the organs. The surgeon can also apply manual pressure and perform hepatic packing or even plugging the penetrating wounds. If the damage is intervention radiologists are their help is also taken if the bleeding is not being stopped by the surgeon. This technique can easily help to stop the bleeding by depositing the coils or foams to control the hemorrhage. And, sorry, I cannot understand. The surgeon should know if the patient is becoming unstable, and the surgery should be paused for that matter. If the acceptable systolic blood pressure is less than 80 to 90, then the surgery should be interrupted and the surgeon can apply direct pressure to the aorta. This provides the surgeon with a feedback with effective transfusion. If the aorta is soft and there is a profound hypovolemia, if after the resuscitation it becomes pulsatile in form, then it means that adequate blood volume is available. For ICU resuscitation, this specifically relates to reverse fractures, the lethal triad, which include acidosis, coagulopathy, and hypothermia. After that, the definitive resuscitation is done. The patient is again taken to the OT, and bowel continuation can be restored, and then the closure of the abdomen can be done. Thank you. Thank you so much, Dr. Hira. Very concise and good presentation. Anybody have question about this presentation or want to add some comment? You can more than welcome. And for this, you have to raise your hand, and I will allow you to unmute. Then you will. जी डॉक्टर इमरान. यस सर एक अभी क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में आया हुआ था डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन के बारे में. वो आई थिंक व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन.
वो बल्कि आप यूं करें, जो ये केसेस है ना ये डिस्कस कर लें, तो मीनवाइल किसी का क्वेश्चन होगा उसको भी एड्रेस कर लेंगे, तो आपको केस सिनेरियो भी डिस्कस करते जाएं जो प्रीवियस क्वेश्चन आए में एफसीपीएस सर। के एग्जाम में। स्क्रीन शेयर कर लें। ये क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड pressure more than fluid resuscitation if vasopressor are not allowed in trauma patient during surgery? ये समझे नहीं इसी क्वेश्चन जी। डॉक्टर राफिया, आप अनम्यूट करें, क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। इन्होंने प्रेजेंटेशन में एक जगह कहा है, लिखा हुआ था कि वेजोप्रेसर्स यूज नहीं करने। तो एक ट्रॉमा पेशेंट है, उसकी सर्जरी हो रही है और हमने उनको फ्लूइड तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, रैपिड फ्लूइड से भी और इन्फ्यूजर बैग्स लगा के, लेकिन उसके बावजूद बीच में अगर प्रेशर्स ड्रॉप होते हैं तो हम अगर वेजोप्रेसर नहीं देंगे तो हम क्या और ड्रग हो सकती है कि हम उसको बीपी इंक्रीज करने के लिए क्या मजीद कर सकते। एक तो हम सर्जन को कहेंगे वो पैकिंग कर देंगे या वो उसके ऊपर मतलब जहां से ब्लीडिंग हो रही होगी वहां हाथ रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर बीपी लो होता है तो क्या किया जा सकता है? जी, इस पे कोई ऐड करना चाहिए? जी डॉक्टर तनवीर, आप कोई करना चाहेंगे ऐड इस क्वेश्चन पे? क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज, थोड़ा। वो मेरे ख्याल में ये ना प्रेजेंटेशन से थोड़ी सी कंफ्यूज हुई है कि वो डॉक्टर हीरा ने कहा कि डोंट यूज वेजोप्रेसर। वो इसलिए मेरा ख्याल है तो कहना चाह रहे हैं कि वेजोप्रेसर के जो वॉल्यूम रिससिटेशन है ना वो कहीं ये ना हो जाए, वो इग्नोर ना हो जाए, रादर देन कि आप वॉल्यूम रिससिटेशन की बजाय आप जस्ट वेजोप्रेसर से उसे केटर करने की अगर कोशिश करते रहें। मेरा ख्याल है उसमें ये हिडन पॉइंट होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें असल में वो जो सेंस है उस बात का वो ये है कि वेजोप्रेसर का मैकेनिज्म टू डेवलप रेज बीपी इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए भी कोई उसके अंदर वॉल्यूम होगा तो तब वो कर पाएगा ना, अदरवाइज अगर खाली वेसल को जितना दिल करे वेजो कंस्ट्रिक्ट कर ले, बीपी तो नहीं बिल्ड हो। तो इसलिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिसेसिटेशन आर टू मेंटेन बीपी इज फ्लूइड रिसेसिटेशन। अगर फ्लूइड रिसेसिटेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करता पेशेंट, देन यू विल गो फॉर वेजोप्रेसर। उसमें हम नॉर एड्रेनालिन जो है उसको फर्स्ट लाइन पे प्रेफर करते हैं। बट योर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज फ्लूइड रिसेसिटेशन। और ये पेशेंट क्योंकि ये डिजीज पेशेंट नहीं होते, वेजोप्लीजिक नहीं होते, तो इनको अगर आप अच्छा फ्लूइड दें, और उनका प्रॉब्लम भी फ्लूइड लॉस होता है, तो फ्लूइड आप रिप्लेस करेंगे तो वो डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वेरी रेयर कंडीशन के जहाँ पे ये इनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता वहाँ पे आप वेजोप्रेसर यूज कर सकते हैं ऑन सेकंड लाइन। जी डॉक्टर राफिया, आप क्लियर हुए हैं? जी राफिया, या जितने भी दूसरे कोलीग्स हैं, असल में हमें कोई हाई ब्लड प्रेशर बहुत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो वाइटल आर्गन परफ्यूजन है ना
ड्यूरिंग सर्जरी वो हमने मेंटेन रखनी है कि कोई भी एंड ऑर्गन डैमेज ना हो जाए। ठीक है, जी तो सर, मुझे समझ आ गई सर, थैंक यू सर। बस उसके लिए यही है। देखें, सबसे पहली चीज ये है कि जो ट्रॉमा पेशेंट है वो यंग पेशेंट है, और उसमें कोई कोमॉर्बिड एज सच नहीं है। तो ट्रॉमा में क्या है, या एक्सटर्नल ब्लीडिंग है या इंटरनल कहीं कंसील्ड ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले फ्लूइड रिससिटेशन है। उसके साथ ये है कि अब सर्जरी वगैरह हो रही है, रिससिटेशन आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लूइड को भूल जाएं एंड यू जस्ट कीप ऑन विद द वेसोप्रेसर्स। ऐसे उस प्रेजेंटेशन से मुराद यही होगा कि आप सिर्फ वेसोप्रेसर पे ना जाएं, बिकॉज देयर वुड बी कंसील्ड हेमरेज, सो यू मस्ट कंसीडर फर्स्ट थिंग एज फ्लूइड रिससिटेशन। जी, ये क्वेश्चन है इमरान ने शेयर किए हैं, तो इनको जी सर, अब नजर आ रही है सर? स्क्रीन सर पे ये मेरा ख्याल है। क्वेश्चन जो बेसिकली है, सॉरी सर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा था, जी सर जी ने जी, जैसे मैं बताया। स्क्रीन पे ही आ रहा हूँ। व्हाट आर द वेरियस। तो मैं ये बता रहा था कि ये सर सीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चंस हैं, तो सर से डिस्कस कर रहा, तो सर ने कहा कि ये भी बेहतर है कि अगर हम क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस करते रहे। तो अब इसमें ये देखें कि अब 3-4 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड ही होगा। अब देखें कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें उस लिहाज से ही प्रिपेयर करना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी थी इन्होंने, लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे हैं और उसमें कोई एक आध और क्वेश्चन कैसे ऐड हो जाते हैं, तो फिर ये हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। जी सर। जी, आप करें इमरान, आप इसको जी लेके सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सर जो पिछले ओल्ड एफसीपीएससी क्वेश्चन फिर रहे हैं, वो सब में से मैंने स्क्रीनशॉट लेके शेयर किए हैं, तो 5-6 क्वेश्चन है। पहला है अ 30-year-old male who sustained polytrauma after RTA was brought in emergency. Question A है what are the various conditions that predispose this patient to increase anesthetic risk? और आई थिंक ये हमें इंटरेक्टिव बनाना चाहिए और सबको इसमें शेयर करना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे अनेस्थेटिक कंसर्न नहीं, एक किस्म का ये पूछ रहा है इसमें। लाइक नंबर 1 पे इसको ट्रामा हुआ है तो ब्लड लॉस इसका हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है। जी सर। अनम्यूट करके जो भी इसमें ऐड करना करें। अच्छा चलें, सबसे पहले तो ये है कि इसमें जब क्वेश्चन इस तरह का हो ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर ही उसका थोड़ा सा जवाब लिखा होता है। जिस तरह इसका जो दूसरा ये है ना जुज, उसमें देखें नीमोथोरेक्स मेंशन्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नीमोथोरेक्स, उसका जवाब में एक मेजर जो चीज है वो उसमें मेंशन है। इसका रिस्क सबसे पहले तो यह है कि इस बंदे को पॉलीट्रामा हुआ है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इटसेल्फ इज अ लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑर्गन इंजरीज हैं, मल्टीपल सिस्टेमिक इंजरीज हो सकती हैं। लाइक उससे हेड इंजरी हो सकती है, चेस्ट का ट्रामा हो सकता है। चेस्ट के ट्रामा में अगर होगा तो जाहिर है टेंशन नीमोथोरेक्स उसे डेवलप हो सकती है, या हो सकता है डेवलप हो के वो इमरजेंसी रूम में आया हो। सेकेंडली, चेस्ट के अंदर ही उसे कार्डिक जो ट्रामा है, कार्डिक टेम्पोनार्ड, वो हो सकता है। अगर टेम्पोनार्ड ना भी हो तो डिफ्यूज मायोकार्डियल इंजरी उसे हो सकती है। फ्लैल चेस्ट हो सकती है, डायफ्राम का रप्चर हो सकता है। इसके अलावा यू नेम द ऑर्गन, लाइक मेजर जो विसरा है उसकी इंजरी उसे हो सकती है, स्प्लीन, किडनी, लिवर टेयर, मीजेंटेरिक इंजरी, उसके बाद पेल्विक बोन फ्रैक्चर। ये तमाम चीजें उसे क्या कर रही हैं, उसके रिस्क को इंक्रीज कर रही हैं, इंक्लूडिंग वाइटल ऑर्गन्स। उसके बाद जो चीज उसे इंक्रीज कर रही है वो फास्टिंग स्टेटस है कि पेशेंट जाहिर है फास्टिंग नहीं है और उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना है, तो ही इज कंसीडर टू बी फुल स्टमक, एसिड उसमें ज्यादा है, और पीएच जो है वो लो है। थर्ड चीज ये है कि बिकॉज ऑफ ट्रॉमा उसका एयरवे भी डिफिकल्ट, डिफिकल्टी ऑफ एयरवे जो है वो उसमें उसके एनेस्थेटिक रिस्क को इंक्रीज कर रही है। एक तो ऑब्वियस जैसे अब आपने डिफिकल्ट एयरवे। ऑर्गन बताया, इस तरह हम एबीसी की तरफ आ सकते हैं सर। जी जी जी, एग्जैक्टली। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी जो है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, और
ABC करके भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज इस तरह भी अगर आप लिखें तो यानी कि उसे आप ऑर्गेनाइज कर लें चीजों को, तो ओके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या की चीज उसके लिए जो है वो एनेस्थेटिक, स्पेशली वो पूछ रहा है कि एनेस्थेटिक रिस्क को क्या क्या चीज इंक्रीज करेगी उसमें। एयरवे डिफिकल्ट हो सकता है, इंटुबेशन भी हो सकती है सर। जी जी फरमाएं। मैंने कहा सर ट्रामा के अंदर इंटुबेशन भी डिफिकल्ट हो सकती है, जैसे आप बता रहे थे एयरवे के अंदर जी सर। जी जी देखें, एक है डिफिकल्टी ऑफ एयरवे जो है एक्सपेक्टेड के जी ऑब्वियस ये, लेकिन अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी एयरवे भी तो हो सकती है। देखें सर्वाइकल स्पाइन इंजरी उसको हो सकती है, ठीक है, मैंडिबल की फ्रैक्चर हो सकता है, एयरवे के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, फास्टिंग ऑलरेडी पेशेंट नहीं है, फुल स्टोमिक है, एसिड से भरा हुआ उसका स्टोमिक है, चेस्ट इंजरी उसको पोटेंशियल हो सकती है। एक तो है कि आइडेंटिफाई हो जाए ना, पोटेंशियल उसके कोई रिब में इतना फ्रैक्चर है, और ड्यूरिंग इंटुबेशन या मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया में उसे आइडेंटिफाई होता है कि जी एकदम सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, पेशेंट क्लैप्स हो रहा है, एंड यू फाइंड इट के इंट्राऑपरेटिव उसे नीमोथोरेक्स होगी। इसमें तो पूरी एक एक चीज, हर चीज उसकी जो इंजरी हुई है वो उसके एनेस्थेटिक रिस्क को इंक्रीज कर रही है, ऐसा ही है। ठीक है ना। यू नेम इट, यानी हेड टू टो यू नेम इट, एंड it's everything that is increasing his anesthetic risk. Got it, sir. So next question है, what will be the clinical presentation if he develops tension pneumothorax during resuscitation? तो अब इसके अंदर हमारे पास मतलब दो चीज हो सकती हैं, हार्ट और कार्डिक दोनों चीजें इन्वॉल्व हो सकती है हमारी। वैसे तो ये हाइपोटेंशन और हाइपोक्सिया से जो है ना प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्रेथ साउंड इसकी जो है ना डिक्रीज हो जाएंगी, और जो है इसका टैकीकार्डिया भी हो सकता है इस पेशेंट को। जी जी और जी सर, असल में मैं चाहता हूं कि जो दूसरे लोग हैं ना, एक एक बंदा अपने जो उनके जहन में आ रहा है ना, लेट सर देम ऐसा ही है, स्पीक। मैं तो यही कोशिश करता हूँ, अब क्या करें उनका सर। जी ये सही कह ऐसे रहे हैं बोलना, जी, एनीवन। एवरी एवरी पर्सन इसमें उनके इसको जो actually- जहन में आए आप काइंडली उसे बोलें। तो इसमें जी है डॉक्टर कि if he रीना। develops tension pneumothorax during resuscitation, that means कि हम उसको mechanically ventilate कर रहे हैं ना उस पेशेंट को। नहीं, अब वो रिब फ्रैक्चर भी तो हो सकता है सीपीआर करते हुए। सीपीआर सही सुनी हो रहा होगा मे भी, हाँ सही कह रहे हैं। तो हम यही है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन ही हो रही है और तब जो है ना उसके प्रेशर ड्रॉप्स होना शुरू हो जाते हैं। This could be clinical presentation in that matter. हाँ जी, कोई और दोस्त जी बोले। सर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एक तो सर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और उसके अलावा सर चेस्ट पेन का भी, कि अगर पेशेंट अवेक और कॉन्शियस है तो वो चेस्ट पेन की भी कंप्लेन कर सकता है। और सर न्यूमोथोरैक्स में पेशेंट का बीपी सबसे पहले डिक्रीज होना शुरू होता है। वो मतलब शॉक की एक जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो शॉक की उसमें भी देगा कि बीपी लो होना हो जाएगा न्यूमोथोरैक्स के साथ सर। ये हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, एसओ भी हो जाएगी। अगर पेशेंट इंटुबेटेड है तो उसका आई पैप बढ़ जाएगा, इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, प्रेशर और बढ़ कोई जाएगी, टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा। और कितने और पार्टिसिपेंट्स हैं जो रह गए हैं, वो 18 भी नजर आ अपना रहे थे, उसको कर कंट्रीब्यूट दो आप, करें। पता नहीं कितने हैं। जी डॉक्टर इमरान, आप कुछ ऐड करें। जी सर इस पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया सर, इसका जो रेस्पिरेटरी के लिहाज से एसओ भी हो जाएगा, इसका सैचुरेशन भी इसकी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, और कार्डियक के लिहाज से सर इसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, और टैकीकार्डिया भी इसको हो जाएगा। जेबीपी वगैरह जो है ना इसकी वो डिस्टेंडेड हमें नजर आ रही होंगी। दूसरा, अगर इंटुबेटेड होगा तो उसका जो है ना वो उसका हमें सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, और उसका जो है ना पीक प्रेशर और ये चीज़ें जो है ना ये चीज़ हमारी बढ़ जाएंगी सर। बेसिकली सर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पूछ रहा है वो हमारा, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर तो ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी हमारी, जो रेस्पिरेटरी और अच्छा कार्डियक चलें, ठीक है हाँ जी। जी। सर एक और चीज सर जो है, अगर यूनिलैटरल होगा तो वन साइड ऑफ चेस्ट जो है वो
उसमें मूवमेंट नहीं नजर आएगी, वो रेज होना शुरू हो जाएगी, और जो दूसरी तरफ इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न मतलब उसमें ब्रीदिंग पैटर्न नजर आएगा। लेकिन जिस साइड पे न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा वो साइड रेज हो जाएगी, और उसमें रेस्पिरेटरी मतलब ब्रीदिंग जो है वो सही ब्रीदिंग पैटर्न नहीं होगा। प्रोफेशन के ऊपर भी तो ये भी अ, एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। अच्छा चलें, अब डॉक्टर आमिर इजाजत है? जी जी बिल्कुल करें, जारी रखें बात। अच्छा चलें, इसे अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इफ ही डेवलप्स टेंशन न्यूमोथोरैक्स ड्यूरिंग रिससिटेशन? ठीक है, तो अब रिससिटेशन से मुराद कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि ये वेंट पे है, इंटुबेटेड है, दूसरे कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसकी सीपीआर हो रही है, और क्योंकि रिससिटेशन हो रही है तो सीपीआर हो रही है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि रिससिटेशन ये शायद ओटी में जा रहा है और ऑपरेशन हो रहा है, और इंट्रा ऑपरेटिव जो है ना कॉम्प्लिकेशन हो रही। रिससिटेशन जब भी ट्रॉमा कॉल अनाउंस होती है, तो जब भी पेशेंट रिसीव्स इन द ईआर, व्हाटएवर इज डन इज कॉल्ड रिससिटेशन। उसमें आईवी कैनुलेशन है, फ्लूइड है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, एक्सरे हो रही हैं, while he is being managed, that is all resuscitation। ठीक है, तो वो कह ये रहा है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सिम्टम आएंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद जिस तरह हम फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ साइंस हम देखते हैं, और तीसरी चीज इन्वेस्टिगेशन। इसको 3 चीजों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले जो आ रहा है पेशेंट को सिम्टम ये होगा कि अगर ही इज अवेक, ही विल से आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। ही विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, he will be hypoxic, his saturation will be going down, he will be appearing cyanotic। क्योंकि पहले पहले तो सिम्टम पेशेंट जो फीलिंग है वो बताएगा ना। थर्ड थिंग, he will be sweating because of hypotension, he will be confused because of low perfusion, because of the lowering of the blood pressure। तो ये उसकी जो फीलिंग है सबसे पहले आप उसे बयान करेंगे। सेकंड चीज, ऑन एग्जामिनेशन what will you see on examination? Neck veins will be engorged, there will be deviation of the trachea, and chest movement will be absent on one side or less on one side and more on the other side। Then you go with examination में inspection, percussion, auscultation, वो जिस तरह आपका पूरा जो सीक्वेंस है उसे आप पॉइंट में लिख देंगे। जो आप ऑस्कल्टेशन में देखेंगे अब्सेंट ये होगा। एंड थर्ड चीज, अगर उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन का आप जिक्र कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सरे वगैरह का रोल नहीं आता, जब आपने इतना एक देख लिया तो यू गो विद द मैनेजमेंट। सो इसे 2 चीजों में कर लें। एक तो रिससिटेशन को क्लियर कर लें कि इससे मुराद सीपीआर नहीं है, इससे मुराद वेंट पे पेशेंट नहीं है, इससे मुराद ये है कि पेशेंट हैज reached the ER and he is being treated there, and now he starts saying I can't breathe, he becomes cyanotic, he becomes confused, his blood pressure is going down, he is in shock. This is presentation. What you look is neck veins engorged, shifting of the trachea, and unequal or absent movement of the chest. And then on percussion, hyperresonant note, when you put the stethoscope on auscultation, there are absent air entry on one side. Here you confirm that this is tension pneumothorax. This is presentation during resuscitation. ये आपने इसे इस तरह इन headings में आपने इसे लिखना है। Hope I answered the question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ट्रीट दिस कॉम्प्लिकेशन? तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, आई थिंक, जो मतलब सर्जिकली होता है। तो नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे हम लार्ज बोर के थ्रू 14 या 16 गेज के थ्रू, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसिंग विद क्लेविकुलर लाइन के अंदर।
ऐसे ही है सर। जी, आप सबसे पहले तो बोलते जाए ना, सारे लोग जो है ना इसमें अपना अपना, यानी कि चाहे एक पॉइंट हो या आधा हो या कोई भी चीज हो, जस्ट ऐड ऑन दैट, आखिर में जो है ना उसे हम समराइज कर लेंगे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें बोलना है, सर ने तो नहीं बोलना, सर ने तो एग्जाम देना नहीं है, अब हमने देना है। और जी, मेरे ख्याल में जो बैठे हैं सबको 100% लोगों को आंसर आते होते हैं, आई डोंट नो। फिर आमिर साहब कहते हैं कि अडल्ट करने के असल बाद में फिर इसमें बात यह है कि ये नेटिव इल्म, ये सारा कुछ जो है ना, ये एग्जाम, ये इल्मुल कलाम है मेरे भाई। आपके जहन में जो चीज है ना उसे आर्टिकुलेट कैसे करना है, बस इसी का नाम ये है एग्जाम। तो काइंडली आप काइंडली बोलें। डॉक्टर आमिर, आप प्रॉम्प्ट करें जो दूसरे लोग हैं। हाँ जी, वो बस हम यही नहीं करना चाहते कि भाई नेम लोगों को कह के। नहीं नहीं, अच्छा चले, मेरे सामने जो इधर नाम आ रहा है ना, सबसे पहले ये डॉक्टर हीरा जीशान है, आप बोलें। हाँ, इन्होंने लेक्चर दिया सर अभी। हीरा ने डॉक्टर सेलेक्ट रास्ता नहीं किया है। बोल दिया, डॉक्टर हीरा नहीं नो बोल वरीज, रहे। नो वरीज, आप फिर भी सर बोल पहले दीजिए। हम यही करेंगे, पहले थोरोकॉस्टमी करेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं, थोरोकॉस्टमी करेंगे सर। व्हाइट बोर्ड नीडल लेके in the second intercostal space in the mid-clavicular line, and then it should be followed by a more effective thoracostomy which is inserted in the mid-axillary line. आप I चेस्ट think ट्यूब this का is कहना चाह रही हैं? जी सर। चलें, सर वो फिर ओके गुड। डेफिनेटिव बाद में होती है, लेकिन तो ये इनिशियल तो निडल हम की कंपटीशन होगी, टेस्ट के बाद में आएगी, bilateral निडल जी डिस्कशन सर, है। it's followed by that चलें, ओके गुड। तो अगली आ जाती हैं अदीला रहमान, आप कुछ बोलिए प्लीज। जी सर, नीडल थोरेकोटमी कर सकते हैं, उसके बाद चेस्ट ट्यूब इंटरवेंशन जो डेफिनेटिव इसकी मैनेजमेंट है। जी, माजबीन ज़ारा। स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी स्क्रीन नजर आ रही है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ वो ही ढूंढ रहा था मैं, लेकिन नजर नहीं आ रही, ये अब आ रही होगी। जी आगे। हाँ, डॉक्टर असलान कुरैशी, आप म्यूट हैं, आप काइंडली शेयर करें कुछ। जी डॉक्टर असलान। सर आई थिंक ये इस तरह कर लेते हैं कि डिवाइड करते जाएंगे। अब इनमें 2-3 लोगों ने आंसर कर दिए, इसको हम समराइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में वहां से शुरू कर देंगे, नेक्स्ट से पूछेंगे सर। चलें, ठीक है। हाँ, ताकि इससे ज्यादा चीज हमारी। सर इसमें ऐड करनी है कोई चीज आपने, या नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर? नहीं नहीं, करनी है इसमें। ओके देखें, सर, जी सर। जो टेंशन नीमोथोरेक्स है ना, राइट फ्रॉम द थर्ड ईयर व्हेन यू आर मेडिकल स्टूडेंट, यू नो इट। जहां भी आप दुनिया में जाएं, जो भी एग्जाम दें, जो भी इंटरव्यू दें, ये आपको आना चाहिए और हमेशा आपसे पूछा जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐड आपने करना है। देखिए, बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जो आपने रूल आउट करनी है उसी टाइम। ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड पेशेंट को इंजरी है चेस्ट की और बस उसमें नीमोथोरेक्स हो गया। नीमोथोरेक्स, टेंशन नीमोथोरेक्स इज टेलिंग कि पेशेंट इज हैविंग चेस्ट इंजरी, उसकी कोई रिब फ्रैक्चर होंगी, आप बाद में उसको गौर करेंगे। उसको मायोकार्डियल इंजरी हो सकती है, कार्डिक टेम्पोनार्ड भी हो सकता है। इन चीजों को साथ साथ रूल आउट भी करना है। जब आप ट्रॉमा लीडर हैं तो आपने क्या करना है, उसका फास्ट स्कैन जो है वो भी कर लेना है कि कहीं, अब ये तो नहीं है कि टेंशन नीमोथोरेक्स है वो भी हो लेकिन साथ में उसे ये भी डेवलप हो रही हो, पेरी कार्डिक टेम्पोनार्ड भी उसे डेवलप हो रहा हो, ठीक है, फ्लायल चेस्ट भी उसे डेवलप हो रहा हो, इतनी मैसिव। तो आपकी एक ही वक्त में तमाम चीजें जो सिमिलर सिम्टम कॉज करती हैं, लाइक साइनोसिस है, हाइपोटेंशन है, अगर टेम्पोनार्ड डेवलप हो रहा है तो वो भी तो ये चीजें कर रहा होगा ना। अब ये जरूरी तो नहीं है कि पेशेंट को सिर्फ एक हो। एट दैट टाइम यू आर नॉट डूइंग
bookish thing or only focusing the tension pneumothorax. You will be treating tension pneumothorax, putting needle, but same time you will be ruling out other similar chest injuries that might present or that might be adding to the situation. उन्हें भी आपने साथ साथ गौर करना है और रूल आउट करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डैमेज कंट्रोल सर्जरी। ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया था। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा नंबर 1 पे क्या चीज है ये? मेरे ख्याल में जिन्होंने आज प्रेजेंटेशन दी है उन्हीं से ही शुरू कर लेते हैं। Sir, basically damage control surgery is the intervention to stop hemorrhage. लेकिन ये definitive नहीं होता। Basically हम patient को stabilize कर रहे होते हैं for the definitive treatment जो कि हम बाद में उनकी करेंगे। जिसमें सर नंबर 1 पे हमारा जो गोल है वो हेमरेज स्टॉप करना होता है। उसके साथ साथ हमें जो है ना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेमिनेशन को भी कम से कम लिमिट करना होता है। थर्ड जो इन्होंने बताया कि ये डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते, इसके अंदर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का काफ़ी रोल है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इमरजेंसी के अंदर कोई सोर्स नहीं मिल रहा तो जस्ट पैक विद द कॉजेज और टेक टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ से आप करें। अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है ठीक, फिर वेट करें, फिर जब ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए तो तब जाकर इसकी जो डेफिनेट ट्रीटमेंट। चलो गो विद मम्मी है मेरे ख्याल में। जी सर। उस दौरान हम ब्लड वॉल्यूम वगैरह ट्रांसफ्यूज करके वो रिसैसिटेशन के साथ कर लेंगे। जी सर, कुछ ऐड करेंगे? आई थिंक इधर आप अगर एग्जांपल 1-2 कोट कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके सर, ये पॉलीट्रामा वाली भी तुम्हारे पास ये सर आ सकती है ना इसके अंदर, अगर हमारा लीवर के साथ exactly. होगी हमारा जिस तरह लीवर ट्रॉमा है एंड इट इज वेरी डिफ्यूज, तो आप क्या करेंगे कि आप उस वक्त तो उसे कुछ नहीं कर सकते, यू पैक इट, ठीक है, आप उसे पैक करके छोड़ देते हैं, लेट द हीलिंग अकर, देन यू अगेन टेक द पेशेंट टू ओटी आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। तो ये एक उसकी एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। और सर कोई वेसल डैमेज हो गई है तो सर वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू जाके हम उसको जो है ना वो कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई गट इंजरी है जिसमें एब्डोमिनल कंटामिनेशन भी हो रही है तो उस टाइम पे फौरन जो है वी क्लीन द एब्डोमेन, और उस टाइम पे हम डेफिनेटिव एनास्टोमोसिस नहीं करते, हम कोलोस्टमी या एलोस्टमी बना देते हैं, फिर पेशेंट को आईसीयू में मैनेज करते हैं। उसके बाद व्हेन कहते हैं जब वो थोड़ा पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, साथ में एडीमा सेटल हो जाता है, तो फिर उसके बाद डेफिनेटिव गट एनास्टोमोसिस वगैरह भी करते हैं। जी सर। जी सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। जी सर, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट जीसीएस यू वुड कंसीडर इंटुबेशन इन दिस पेशेंट। आई डोंट नो ये इन दिस पेशेंट है या सबके लिए एक ही जीसीएस होता है सर? 8 or less. 8 or less than 8, right? नहीं, 8 is too low, I think. Let's discuss about it. 8 is a deep मैं coma. ये कहता ये जीसीएस इसके लिए है या हर पेशेंट इंटुबेशन के लिए एक ही होता है, मैं ये कह रहा था। जी सर। No, look, इसमें देखें उसने ये नहीं बताया कि ये पोली ट्रामा है, it's for every trauma. जी सर, वही मैं कह रहा था। ठीक है ना? Let's discuss it. Look, any GCS in which patient is unable to control his airway needs intubation. ठीक है? ऐसा GCS जिस पे पेशेंट अपना एयरवे कंट्रोल नहीं कर सकता और उससे रिस्क है एस्पिरेशन का, उस एयरवे को सिक्योर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पेशेंट जब रिससिटेशन में होता है ना, तो ये फिर कंप्लीट बॉडी स्कैन के लिए जाते हैं, ठीक है। इनका कंप्लीट
जो है ना वो स्कैन होता है, इसका सीटी स्कैन होता है, तो उसमें एक तो एयरवे प्रोटेक्शन होती है, दूसरा इरिटेबिलिटी होती है। ये बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, तो उसमें स्कैन भी नहीं हो सकता। और सीटी स्कैन क्योंकि कवर्ड एरिया है, वहां पे अगर एयरवे की कोई इमरजेंसी डेवलप होती है तो पेशेंट के लिए ये डिजास्ट्रस होती है। तो ऐसे पेशेंट का मेरे ख्याल में कि अगर 10-11 के अराउंड अगर जीसीएस होता है ना जी, तो उससे क्या करते हैं कि आप सेमी इलेक्टिवली इंटूबेट कर देते हैं। अच्छी आप सेडेशन, रेमीफेंटेनिल, प्रोपोफोल ये करके आप इसे स्कैन वगैरह के लिए ले जाते हैं, और फर्दर इसका डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होके फिर अकॉर्डिंगली लेप्रोटमी हो या क्रेनियोटमी हो, आगे जो भी हो, फिर सारा कुछ जो आगे है ना वो एक कंट्रोल्ड वे से किया जाता है। स्ट्रेट अवे सेइंग GCS 8 और लेस देन 8, मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट है, और थोड़ा इससे मैं डिफर करता हूँ। जी सर, बात सही कहें, एग्री विद दैट के जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया इस तरह तो बिल्कुल सही है कि डिफरेंट जीसीएस कर लेते, लेकिन हमने कहीं 8 और लेस देन 8 ही पढ़ा है। हम उस टाइम में बात कर रहे थे सर। जी सर, उसका थैंक यू। अब इसे कंफर्म कर लीजिए, लेकिन जो प्रैक्टिकली मैं करता रहा हूँ और होते देखा है, और इन इन रियलिटी जो होता है, मतलब है कि ट्रामा है, अमूमन पेशेंट सेमी कॉन्शियस होता है, बाज का इरिटेबल होता है, लेकिन रेस्पॉन्सिव होता है। उसकी स्कैन के लिए ले जाना है, तो यानी कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि यानी जो इमरजेंसी टीम है, जो इमरजेंसी का जो लीडर होता है, वो कहता है जी पेशेंट माइट डिटीरिएट वाइल टेकिंग टू सीटी स्कैन और शिफ्टिंग। सो क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिश तो नहीं हुआ होता ना कि इसकी हेड इंजरी है, इसको क्या चल रहा है, राइट ठीक है सर। ना। उसे यानी उसकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है ना, अभी तो डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होना होता है। तो इस रिस्क में भी वो कहते हैं कि जी बेहतर है कि एनेस्थेटिस्ट इसे कंपनी कर ले, कि रादर देन कि ये एयरवे अपना लूज करे। और जब आप इनको फॉलो करते हैं ना इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को, तो बहुत सारे उसमें हादसात होते हैं, जिसमें यानी कि वो एज ए लेसन जो है ना वो अपनी पॉलिसी बना रखते हैं कि जी देयर वाज अ पेशेंट विद GCS 13, वी सेंट हिम फॉर CT स्कैन, ही collapsed इन CT स्कैन एंड अल्टीमेटली डाइड। सो जब इस तरह की वो इंक्वायरीज होती है ना जी मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी में, तो फिर क्या होता है कि वो पॉलिसी डेवलप कर देते हैं कि जी इरिटेबल पेशेंट जो है उसे इंटूबेट किया जाएगा, हॉस्पिटल अपनी पॉलिसी बना देता है। तो इसमें आप डिबेट कर सकते हैं कि ओके सर। एक तो बहुत ऑब्वियस होगा कि आपने लिख दिया है कि इसको यूं आप जवाब दे दें, इफ पेशेंट इज ऑलरेडी इन डीप कॉमा, से GCS 8 or less than 8, there will be definite intubation. Secondly, if patient's GCS is like 10, 11 and he is irritable and drowsy and semi-conscious and suspecting head injury and patient might deteriorate, in that circumstances we can electively offer to intubate the patient to protect his airway and better oxygenation. तो जब आप इन दोनों चीजों को इस तरह लिखेंगे तो आपका मेरा ख्याल है कि प्लस जो है ना नंबर काउंट होगा, आपको कोई गलत नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है ना। जी सर। The next question है, what is the physiological response to rapid loss of 1 liter of blood in an adult? अब हमने सर जो पढ़ा है, जो इन्होंने पढ़ाया वो हम परसेंटेज के लिहाज से पढ़ रहे थे, 15% और जो है आप ऐसा करें ना कि 15-30%। पहले जो एडल्ट का सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो निकाल लें, उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा, ओके सर। सर ठीक है। अगर तो एक एडल्ट है 70 kg बॉडी वेट, तो अगर हम 70 ml per kg लेते हैं तो इट विल बी 490 ml, 4,900, 4,900 राइट। तो इट अप्रोक्सीमेटली इट्स 5 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ अगर हम करें तो सर इट बिकम्स 20%। ओके, तो 20% इट मींस के दिस विल बी क्लास क्लास 2 2 हेमरेज राइट। सर। तो इसमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या होंगे हमारे? आपकी स्लाइड में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। So diastolic BP would be raised as well as heart rate would be raised. अगर हम BP और heart rate पे तो मेरे ख्याल में हर बंदा अपना अपना जरूर बताए और ये करे, बताए। मेरा ख्याल है इसमें एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट।
जी सर। तो सर ये क्लास 2 है, अब इसमें थोड़ा सा रिव्यू कर लें। तो क्लास 1 में तो कोई हमारे पास नहीं आ रही थी चेंजेस वगैरह। क्लास 2 में तो अब कंपनसेटरी चेंजेस तो नहीं है, तो कोई ऐड ऑन कर दे तो फिर अच्छा होगा। क्लास 3 में कंपनसेटरी चेंजेस आ जाती है, तो क्लास 2 में कंपनसेटरी चेंजेस नहीं है। तो इसमें जैसे इन्होंने बताया 2 चेंज तो बताई है इन्होंने, डायस्टोलिक और हार्ट रेट का। ये ब्लड लॉस जो है ना कंपनसेट होगा, ब्लड प्रेशर ओवरऑल जो एंड ऑर्गन परफ्यूजन है वो ठीक रहेगी, लेकिन कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे इस पे। हो जाएगा, बिल्कुल सर, इसमें restriction होगा। इसमें टैकीकार्डिया होगा। सर ये क्लास 2 हेमरेज में आएगा 15 to 30% ब्लड लॉस बनता है क्लास 2 हेमरेज। और सर इसमें सिंपैथेटिक रिस्पांस एक्टिव होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ओवरऑल परफ्यूजन सेम रहेगी। आईवी फ्लूइड या ब्लड रिसस्किटेशन की जरूरत है इसमें। और सर उसके अलावा सर अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो ये क्लास 3 हेमरेज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस पे इन्होंने बोला है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। सर इसमें लिखा हुआ था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यूज, और अगर वो क्लास 3 में चला जाता है तो। दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग। जी कोई और ऐड करेगा इसमें? जी सर आमिर साहब, ये थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करना है सर। जी इमरान, टाइम काफी हो गया है, मेरे ख्याल ओके में सर। यहीं पे इसको ऑफ कर देते हैं। बाकी जो ये ग्रुप में शेयर कर दो क्वेश्चन, लोग वहाँ पे अगर किसी को डिबेट होगी तो वहाँ पे भी कर लेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट ओके वीक। जी सर, लेकिन सीनियर का फीडबैक आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। तनवीर साहब तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें। जी जी, ठीक है सर। आप ये क्वेश्चन 5 जो नजर आ रहा है इसका पूछना चाह रहे हैं? वही डिस्कस कर रहे थे सर से। यानी असल कि में अगर देखें, करना चाहे तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, बाकी अगर लोग 12 बज गए। अ, चलें, असल में देखें ट्रामा का एक ही सिनेरियो है सर ये वो कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे क्वेश्चन नहीं है, यही वाला एक क्वेश्चन है इसके अंदर, और नहीं है सर। young male with severe multiple injuries is brought to the emergency room. How will you assess him pre-operatively? जो हमने पहले डिस्कस किया है ना वही सारी चीजें इसमें रूल आउट करनी है। ठीक है, जो हमने पहले सारा डिस्कस किया है, यानी उसको चेस्ट इंजरी तो नहीं है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है, उससे कोई मायोकार्डियल इंजरी तो नहीं है, और कोई फ्लायल चेस्ट तो नहीं है, हेड इंजरी तो नहीं है, तब कोई मेजर जो है ऑर्गन डैमेज तो नहीं है। इन तमाम चीजों को रूल आउट कर लेना है प्री ऑपरेटिवली। तो एयरवे असेस कर लेना है आपने, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी जो है वो रूल आउट करनी है। गिव क्लिनिकल इंडिसेस फॉर द ब्लड लॉस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस, ये भी हमने अभी डिस्कस करना शुरू कर दिया था। जी सर, ये हम जो टाइप 1 टाइप 2 पढ़ रहे थे नहीं, सर, ब्लड टाइप 2 ही लॉस होगा। आपने यानी कर लेना है कि यही है कि साइंस एंड उसका सिम्टम्स सर। इसमें ट्रिगर पॉइंट ये होगा कि उस पेशेंट में जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो चुके हैं या नहीं हो चुके। ठीक है, ओके। सही है, यानी कि उसका जो लॉस है वो आप वहां से अंदाजा कर सकते हैं उसकी कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म की एक्टिवेशन से। व्हाट आर दी हैजर्ड्स ऑफ फुल स्टमक, ये तो माशाल्लाह हर एनेस्थीसिया स्टूडेंट को पता ही होता है, हैजर्ड्स ऑफ फुल स्टमक। तो तो हैजर्ड लिख दिया है, हाँ हाँ, तो हैजर्ड हैजर्ड ही लिखेगा वो ना। और एस्पिरेशन ही हर कोई याद करते रहते हैं सर।
सिर्फ एस्पिरेशन ना बोला करें ना यार, ये देखें एस्पिरेशन हर बंदा बता देगा, फुल स्टमक के क्या क्या हैजर्ड हैं। और कोई ऐड करे ना प्लीज। सिर्फ एस्पिरेशन ना लिखा करें, जब भी कंसेंट भी लेनी हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो, उस पे आप लिखेंगे एसिड एस्पिरेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। उसको एरो दे के हमेशा लिखा करें, उसके थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी, ठीक है ना। व्हाट आई एक्सप्लेन, पेशेंट को आपने बता दिया कि जी वो आपकी एस्पिरेशन हो सकती है जी, बस एस्पिरेशन हो सकती है, वो क्या जाने एस्पिरेशन क्या है, कि भाई एसिड एंड फूड कंटेंट विल गो इनटू द लंग्स, दैट माइट रिजल्ट इन निमोनिया, but it can lead to very serious complications also. Acid aspiration and consequences, full stomach से airway management difficult हो जाती है, ठीक है। आपको लामहला रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी पड़ती है, उससे आप बीइंग एनेस्थेटिस्ट आप एक एक्स्ट्रा वरी का शिकार होते हैं, आपकी अपनी थिएटर में एक स्ट्रेस का माहौल बन जाता है, ठीक है। आपको एयरवे मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट और जैसे वीडियो लेरिंगोस्कोप है, एडिशनल एड्स वगैरह एंड रेडीली हेल्प अवेलेबल ये चाहिए होती है। ये 2-4 पॉइंट और भी आप मेंशन कर देना। एक देखें, एक पेशेंट है मॉर्बिडली ओबीज है, फुल स्टोमिक भी है, तो उसमें सिर्फ एस्पिरेशन लिख के तो आप साइड पे ना हो जाए ना, आपको खुद भी तो कितनी वरी हो रही है ना, कि आपके अपने आसान खता हुए हैं बीइंग एनेस्थेटिस्ट के, यार ये क्या हो गया, ये देखें फुल स्टोमिक भी है, ओबीज भी है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का भी इसे डर है, तो सारी चीजें इन्हें ऐड ऑन करें ना। सर एक सिंड्रोम भी तो होता है इससे सर, मेंडेलसन सिंड्रोम, तो मेंडेलसन सिंड्रोम भी है, वो तो पूछते सिजेरियन हैं के लिए लास्ट कुछ वो स्पेशलाइज्ड होता है। वो टर्म बोली जाती है, वो होती है कि अगर प्रेग्नेंट खातून है और वो एसिड एस्पिरेशन करे, वो होती है प्योर एसिड एस्पिरेशन, मेंडेलसन सिंड्रोम। ये जो ट्रॉमा है इसमें देखें, हो सकता है पेशेंट ने पूरा मील लिया और मील के बड़े बड़े बोलसेस हों, उसमें मीट हो, उसमें पार्टिकल हो, एसिड भी हो, ठीक है ना, ब्लड भी हो, इसमें तो यानी कि मल्टीपल चीजें हैं ना। तो मेंडेलसन सिंड्रोम इज particularly related with that pregnant female who is although empty stomach but she is having lot of acid in her stomach, understand? Got it, sir. जी ठीक है सर, ये क्लास 4 है सर, ये स्कोरिंग है, ये हम देख लेंगे सर, ये बस इनके नाम बता दें तो बेहतर है सर, स्टूडेंट कोई ना जाए हमारे प्लीज जो है। नहीं, ये स्कोरिंग तो आप मेंशन करें यार। ओके सर। जी सर, इसमें हमारी जो मोस्ट कॉमन है वो तो हम जीसीएस करते हैं सर, इसके अंदर स्कोरिंग, और अच्छा सर इसके चलें, अंदर रिवाइज ट्रामा स्कोरिंग भी आ जाती है, अपाची भी आ सकती है सर। वही ना, सबसे पहले तो जब भी स्कोरिंग आएगा ना तो आप एक पे नहीं रखेंगे, आप मेंशन करेंगे देयर आर मोर देन वन, देयर आर मल्टीपल स्कोरिंग सिस्टम्स इन, यानी कि उसको उस हिसाब से करें, ठीक है ना। एक ये है कि आप the trauma scoring for the neurosurgical anesthesia, neurosurgical trauma is GCS, ठीक है ना। for polytrauma having multiple injuries sustaining to different organs उसमें और है, ठीक है ना। और इसके लिए और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस भी हो जाता है, तो इसकी ऐसे सर्च शुरू हो जाएगा, सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम स्कोर पर, ये भी हम कर देंगे सर। क्या यानी देखें, कुछ चीजें होती हैं वो होती हैं यानी कि थ्योरेटिकल होती हैं, कुछ चीजें होती हैं वो टेबुलर होती हैं, यानी कि उनमें टेबल फॉर्म होती है, यानी कि उसमें बहुत कंसाइज। और अब जैसे जीसीएस है फॉर एग्जांपल, अब जीसीएस को आपको पूरा स्कोरिंग एज सच आप लिखेंगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे ना, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं वो टेबल होता है, वो उसमें कुछ नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको आपको एज सच याद करना होता है, ठीक है ना। कुछ चीजें होती हैं वो फिलोसॉफिकल होती हैं, वो एक्सप्लेनेटरी होती हैं, उनमें डिस्कशन का एलिमेंट होता है। वो जो होती है ना
उनको आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना। तो ट्रॉमा स्कोरिंग जो है इट्स अ टेबुलर फॉर्म, तो इसका टेबल ही आपको याद होना चाहिए, उसे आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और कुछ? सर बड़ा मजा आया सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ, पता है क्या है, आप सारे जो है ना पार्टिसिपेट किया करें। आपकी देखें, हम यहाँ कोई एग्जाम के लिए थोड़े बैठे हैं, हम तो आपके यानी कुलीग हैं, दोस्त जी हैं, सर, बड़े एक भाई दूसरे हैं। को लर्न ठीक है, करें। तो उसका आप फायदा उठाया करें इसका, यानी कि उसमें आपके जो भी जहन में हो जस्ट आप बोलें हमसे। ठीक है ना, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, एक्सरसाइज होती है, यानी कि अच्छे तरह अटेम्प्ट करने की चीज ना। और हमें खुद भी देखें, इससे हम खुद लर्न कर रहे होते हैं। मैं लर्न करता हूँ यार, बहुत सारी चीजें नई होती हैं, रिवाइज हो जाती हैं। ठीक है, इट्स नेवर ऐसे ही है। एंडिंग मैं प्रोसेस। तो सर से कहता हूँ तो सर मुझे कहते हैं डर लर्निंग है। कुछ ना बोलो, मैं कि ठीक है सर। हाँ नहीं, ऑनेस्टली हकीकत बात है। आप जाहिर है हर रोज हर चीज आप सीख रहे हैं, और नौजवानों से बंदा बड़ी चीजें सीखता है, खासतौर पे नए लोगों से। कंटिन्यू सर दैट। लगता है अपना नॉलेज शेयर नहीं करना चाह रहे, छुपाना चाह रहे हैं। ओके नहीं सर। यार, ऐसा नहीं है। जो मेरे पास, जो मुझे दो लफ्ज आते हैं, मैं बिल्कुल वो शेयर करता हूँ। सो नाइस ऑफ यू सर। जी सर, आमिर साहब थैंक यू सर। जी सर। जी थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट में हमारा ये इमरजेंसी और ट्रामा का सेकंड पोर्शन है, वो आपके साथ शेड्यूल शेयर किया होगा। तो जी उसके जी। बाद फिर एम्बुलेटरी एनेस्थीसिया और आउट ऑफ पेशेंट थिएटर एनेस्थीसिया, ये हमारे टॉपिक्स हैं इस मॉड्यूल में। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो फर्दर आपका फीडबैक, ये जो तनवीर भाई और इमरान बार बार कह रहे हैं, वो यही है कि आप लोगों का फीडबैक आए, आपका पार्टिसिपेशन हो। जितना एक्टिवली आप लोग इस प्रोसेस में आएंगे, उतना ही इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो इसमें जो इशू लगता है, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, असल में वो इस क्लास के लिए ना एक स्पेशल टाइम निकाल के, यानी कि एक प्रोटोकॉल के साथ नहीं बैठते, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो कैजुअल अपने ही बेड में लेटे हुए भी हैं, साथ बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो वो सुन रहे होते हैं। चलो इतना भी सुन लेना, इट्स सफिशिएंट जो है ना, नॉट बैड। लेकिन अगर आप एक प्रोटोकॉल के साथ बैठे ना, जैसे इमरान बैठा है, डॉक्टर तनवीर बैठे हैं, या मैं बैठा हूँ, कि हमने अपना कैमरा भी ऑन करते हैं, आप देख भी रहे हैं कि हम स्पेशली एक सेपरेट रूम में बैठे हुए हैं कि भाई ये 11 से 12 बजे तक हमारी क्लास, तो फिर आप जी जी। एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें ये इमरान जो बात कर रहा था, डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें होती हैं, आप डेली कर रहे होते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि कोई माइंड किसी आइडिया के हवाले से बिल्कुल ब्लैंक हो। हर माइंड में आइडियाज होते हैं। लेकिन इशू वही है कि आप थोड़ा सा ना इसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं बना रहे। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज यही होता है कि लोग जो है वो स्पेशली नहीं बैठे हुए होते, वो कैजुअल बैठे हुए होते हैं, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो होपफुली कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। तो क्योंकि आगे आपने एग्जाम भी देना है, आप इस फेज में है, लर्निंग फेज में, और लर्निंग फेज कभी भी ख़त्म नहीं होता। मैं और डॉक्टर तनवीर भी इस बात को सेकंड करेंगे कि पोस्ट फेलोशिप के बाद शायद हमारे स्टडी ओरिएंटेशन ज़्यादा बढ़ गई। कि आप पहले में अगर 1-2 घंटा या हम इकट्ठे एग्जाम में पढ़ते थे, तो अब डेली 1-2 घंटे हम देते हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए। प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग से ही होती है, वो एंड नहीं कहीं पे होती। जहाँ पे आपने सीखना बंद कर दिया, वहाँ पे आप प्रोफेशनली डेड हो जाते हैं। तो होपफुली with good experience in future. Thank you so much everybody, and Allah. अल्लाह हाफिज़।